chapter for you people. So see, let's have a look. What is the importance of NCERT in UPSC suppose and MPSC also? देखिए बहुत से लोगों का ये भी कंसर्न रहता है कि सर हम लोगों को MPSC के लिए भी NCERT यूज करनी है. See, for MPSC लीजिए आप लोग और UPSC लीजिए, there should be the authenticate source of information. So अगर UPSC NCERT में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो MPSC भी ढेर सारे क्वेश्चन पूछती है. There are two basic sources of information in UPSC like NCERT books and state board books, which are available in English plus Marathi. NCERT books are available in three languages: English, Hindi, and Urdu language suppose. No any other regional language, but for definitely for MPSC also you have to study NCERTs. So for both the exam, the source of information will be same. In MPSC, student does not used to go through the NCERT. That is what the reason they have the cycles of multiple exams. Even I was there for the MPSC teaching in 2016, 17. Lots of questions, directly 20, 30 questions were there from the NCERT in state service also. Especially in case of साइंस, जनरल साइंस और यूपीएससी में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हम लोग एनसीईआरटी की लिस्ट के ऊपर भी फोकस करेंगे. ये स्लाइड विजिबल है आप लोगों को, राइट? यस सर. गुड. सो सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चन, व्हाई एनसीईआरटी, दैट why it is important to study NCERT. आप किसी को भी पूछ ले, अगेन आई एम रिपीटिंग, तो वो दो सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, फर्स्ट बेसिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज NCERT and another is the Hindu or any other newspaper, but NCERT is very much prior. First reason why NCERT, that it is simple to kickstart the preparation. देखिए अभी हम लोगों को पता है कि हम लोग जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी, दैट इज द वेरी काइंड ऑफ बिग एग्जाम. सब पूरे साल ये एग्जाम चलती है. 3 इसके टायर रहेंगे, प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू. तो इतनी बड़ी एग्जाम के लिए लोग कहते हैं कि बहुत पढ़ाई करनी पड़ती, बट बहुत पढ़ाई कहाँ से शुरू करनी है? तो बहुत पढ़ाई शुरू करने की सबसे बेस्ट तरीका होता है एनसीईआरटी से. इट इज वेरी सिंपल टू किक स्टार्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम 6th standard 7th standard books itself. Directly, instead of directly starting on the higher note, lots of people used to say that whether I started with the reference book directly. So see, reference books are important for exam, but those are better if you refer them after some time period. First thing first go through the fundamentals, basic, and then we will go to the advanced suppose. And always remember, UPSC is all about basic and small things. ऐसे भी बहुत बार होता है कि जो इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में दी होती है वो इंफॉर्मेशन बहुत से रेफरेंस बुक में भी होती है. ये भी समझ लीजिए आप. एनसीईआरटी इट्स अ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. रिमेंबर दिस, नेशनल काउंसिल फॉर द एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. So it is simple to kickstart your preparation. Second source or second important reason, that it's the authenticate source of information. देखिए जैसे कि इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने कहा कि यूपीएससी का प्रिपरेशन शुरू कहाँ से करना है. अभी यूपीएससी ने खुद तो कोई बुक लिस्ट आप लोगों को दी है नहीं कि भैया ये हम लोगों का सिलेबस है, उसके बाजू में ये बुक्स दी है जैसे कॉलेज में होता है. इन बुक्स को रेफर करेंगे तो इसमें से क्वेश्चंस आ जाएंगे. There is no list of books from the side of UPSC. And what is the standard information, or what is the standard source of information, and authenticate also. So the best thing is NCERT. It's the best authenticate source of information. Authenticate क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि इस एग्जाम इस बुक में दी हुई जो एग्जाम यानी जो इंफॉर्मेशन है ना, वो लोग रिसर्च करके लिखते हैं. इट्स अ नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च. हर चीज के ऊपर रिसर्च की जाती है पहले, और रिसर्च की भी चीज ऑथेंटिसिटी हम लोग कंसीडर करते हैं. बाय द वे जो जर्नल्स होते हैं या पेपर्स पब्लिश होते हैं, बुक्स होती है ऑथेंटिकेट बुक्स, एंड दे आर पब्लिश फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड इटसेल्फ. Remember this thing, the exam is also conducted by government and the books are also published by the government side. और अच्छा इंफॉर्मेशन रहता है इसमें. हिस्ट्री में बहुत बार डेट्स का वगैरह कुछ यानी हो सकता है कि डेट्स मिसमैच करें. बहुत सी बुक्स में बहुत सा अलग अलग दिया रहता है, बट व्हाट इज गिवन इन एनसीईआरटी दैट वी यूज्ड टू कंसीडर एज ऑथेंटिकेट. if the source of information is NCERT, then it will be considered as authenticate source.
थर्ड रीजन सपोज क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग बेसिक्स। यूपीएससी में बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जिस इंसान के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वो आईएएस तो अच्छी बात है, बट एक लाइफ में सक्सेसफुल इंसान रहता है वो हैज द क्लियर कॉन्सेप्ट्स। तो आप लोगों को सपोज यूपीएससी के लिए जो कॉन्सेप्ट लगते हैं दोज आर गिवन वेरी क्लियर एंड कट ओवर देयर इन द एनसीईआरटी, वेरी प्रॉपर। फॉर इंस्टेंस हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के एनसीईआरटी, सपोज वी विल टॉक अबाउट द ज्योग्राफी एनसीईआरटी। ज्योग्राफी के लिए आज अगर आप मार्केट में जाते हो कि फॉर यूपीएससी ज्योग्राफी के लिए कितनी बुक्स अवेलेबल है, मैं कहूंगा आपको 50,000 से ज्यादा किताबें अवेलेबल है मार्केट में, मोर देन 50,000 बुक्स ऑन ज्योग्राफी, सिंगल सब्जेक्ट। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो बेसिक्स आप लोगों को एनसीईआरटी में दे रहेंगे दोज आर कंसिडर्ड एज वेरी ऑथेंटिकेट सपोज, क्योंकि उसमें जो फिगर्स वगैरह दी रहती है, ज्योग्राफी में आप लोगों को फिगर्स लगती है बहुत, या कुछ नंबर्स दिए रहते हैं या कुछ डायग्राम्स आप लोगों को रहती है। मोस्ट इंपोर्टेंटली ज्योग्राफी बुक में आप लोगों को मैप्स दिए रहते हैं। वो जो मैप्स रहते हैं मैप्स के ऊपर से आप लोगों को कितनी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स, मैप रीडिंग के क्वेश्चन कहते हैं। आप कहते हैं कि मैंने इतना सारा एटलस देखा, एटलस में तो ये दिया ही नहीं, ये एटलस में से पूछा ही जाता नहीं जनरली। एटलस रेफरेंस के लिए होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ क्वेश्चन इज फ्रॉम द एनसीईआरटी मैपिंग के ऊपर। हर साल 10 में से 10-12 क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी के ऊपर है, एक आध दो क्वेश्चन मैपिंग के ऊपर होता है। और प्रॉपर कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी जो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, तो आपके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए। जैसे कि प्रीलियम और मेंस दोनों में भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट प्रॉपरली एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इतनी सारी बुक्स अवेलेबल होने के बावजूद भी हम लोग सबसे बेसिक एक ही रेफर करवाते हैं। बेटर इफ यू गो थ्रू द एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स, देयर इज नो एनी अदर ऑथेंटिकेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ज्योग्राफी itself. Otherwise there are more than thousands of books in market. Only 2 books, NCERT and GC Young, and India Atlas, suppose school atlas, that's all. So figures, diagrams, maps, case studies, or lots of case studies are over there. In fact, we had studied the 6th standard NCERT of history. Every chapter started with the case study. Remember, every chapter started with case study. If you refer the 7th standard NCERT of geography, that NCERT has the case study over tsunami, that NCERT have a big case study over landslide, that NCERT have a big case study over water pollution. And these are the same topics which have been used by the or asked by the UPSC, whether it is prelim or mains. Consistently there are questions in the fragile Himalayan mountain ecosystem. Landslide are very occurrence means very frequently it happens over there. So case studies properly, everything is given, even the earthquake case study is given very properly over there. So strongs यानी आप लोगों को आंसर राइटिंग में मदद ही होती है इसकी। फोर्थ रीजन द सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। मैं तो यही कहूंगा कि आप लोगों को यानी जैसे कि 6 पॉइंट में आप लोगों को दिया है क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक्स, तो देखिए आप लोगों को यानी पहली बात तो ये है कि हर चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस इन लोगों की दिए रहते हैं जिसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, so that exercise have a kind of standard questions. After reading the NCERT or after reading a single chapter, if you are going through that exercise itself, that will be quite enough in the early phase of your preparation. Instead of directly started studying the NCERT, just read the chapter and solve the question. Just go through the exercise and read each and every point in NCERT. Boxes are given over there, by the way. In a 6th standard NCERT, suppose if you focus, they have given the this second or third page के ऊपर इन लोगों ने ये देके रखा कि इस बुक को यूज कैसे करना है करके, how to use this. Just on the left side page of first chapter, definitions are there, sources are there, even NCERT giving you the sources of information from where the NCERT is collecting this information. Additional information is there. Elsewhere is there. That means if the Indus Valley civilization in India and somewhere else what civilization was there, so they have given the examples of Persian civilization, or if there was a Bhimbetka in India, then at the same time 10,000 years ago the same kind of painting have been found into the Germany, the caves in Germany. इतना बेस्ट और स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन किसी बुक्स में नहीं सर, आप लोगों को बता दो। स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन इंडिया के साथ साथ कंटेम्प्रेरी चल रहे हो कि इंडिया में ये था तो इजिप्ट में क्या था, पिरामिड चल रही थी इजिप्ट,
कंटेंट आईवीसी सपोज। कीवर्ड्स उन लोगों ने दिए हैं, कीवर्ड्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी का हर क्वेश्चन कीवर्ड्स के आजू बाजू ही घूमता है। और यूपीएससी में तो गुड आंसर इन यूपीएससी इज दैट व्हिच रोटेट्स अराउंड द क्वेश्चन। जो आंसर क्वेश्चन के आजू बाजू रोटेट कर रहा है वो बेस्ट आंसर कहा जाता है। बहुत से लोगों को वोकैबुलरी का एक प्रॉब्लम होता है कि सर मुझे तो इंग्लिश में लिखना है पेपर बट मेरे पास आई डोंट हैव अ गुड वोकैबुलरी। अभी आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं अगर आपको कहूँ कि आप एक मुझे क्वेश्चन का आंसर लिख के बताइए, तो शायद आप में से कुछ लोग थोड़ा ही लिख पाए, 10 वर्ड्स, 15, 20, 25, 50 वर्ड्स में खत्म हो जाएंगे। आप पता होने के बावजूद भी आपके दिमाग में ख्याल है कि व्हाट आई हैव टू, बट वो कागज के ऊपर नहीं उतरता है। क्यों? क्योंकि वोकैबुलरी नहीं, मीडियम होना चाहिए। Words are the medium, what you think, and your thought must be presented on the paper, clean and neat. So the best way to develop your vocabulary is NCERT itself. बहुत से लोगों का ये भी कंसर्न रहता है कि सर जैसे कि अभी मैं इंजीनियरिंग में हूँ तो मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी मुझे समझ में आती नहीं, उसके वर्ड्स काफी अलग है। तो देखिए अगर हर सब्जेक्ट के अपने अपने वर्ड्स होते भाई, तब आई डिड अ मेडिकल, पैरामेडिकल, तो उसके अपने वर्ड्स है, सब्जेक्ट्स भी अपने और वर्ड्स भी अपने, जो आम दुनिया से कोई संबंध रखते नहीं। आप इंजीनियरिंग में जाओगे, मैथमेटिक्स में जाओगे, साइन कॉस थीटा, ये मैथमेटिक्स के वर्ड आने ही वाले हो। जैसे आप लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ते हो तो बट ऑब्वियसली यू हैव टू नो द बेसिक वोकैबुलरी ऑफ दैट सब्जेक्ट। बेसिक वोकैबुलरी, इमरजेंसी, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, जियोग्राफी में अर्थक्वेक क्या है, सुनामी क्या है, व्हाट आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज। सो द बेस्ट वे, if you really willing to develop your vocabulary for the answer writing, better you go through the NCERT because there are proper keywords are given over there. Keywords ये आप लोगों को लगता है सर फैक्ट्स कलेक्ट करने, यूपीएससी एनसीईआरटी, ये हिस्ट्री की हर एनसीईआरटी में उन लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देके रखी है फैक्ट्स कि बुद्ध कब थे, महाजनपद कब शुरू हुए, महाजनपद फ्रॉम दिस टाइम पीरियड। सो इट्स अ गुड थिंग इन फैक्ट। नेक्स्ट रीजन इज सपोज क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक्स। जैसे कि मैं आप लोगों को कहता हूँ, आप लोगों को कहते हैं कि सर मुझे यूपीएससी में बताइए कि डायरेक्टली क्वेश्चन किस बुक से आते हैं, तो आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में एनसीईआरटी से। एवरी ईयर इन यूपीएससी आउट ऑफ 100, 30 to 35 questions are directly they get from NCERT every year. Remember the numbers 30 to 35. Sometimes it increases but not decreases. 30 to 40 question और 30 से 35 questions are very good, big thing. 35 questions means 70 marks, directly 70 marks, because there are 2 marks for each question suppose. Just get the example of 2016 paper, 2016 preliminary civil service examination. There are literally 3 questions consecutively from the 7th standard NCERT book. 3 questions consecutively, one by one, from the same book, history. और अगर मेंस में आप लोग बात करते हो तो सर मेंस के ऊपर तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, फिर बहुत ज्यादा, क्योंकि मेंस में भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए, कंटेंट चाहिए। अभी ज्योग्राफी का इतना बढ़िया कंटेंट, फिगर, मैप्स, केस स्टडीज कहाँ पे मिलेगा आप लोगों को। हिस्ट्री में जो कंटेम्प्रेरीज उस वक्त थे, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, एनसीईआरटी से अच्छा कंटेंट मिलेगा कहाँ पे आप लोगों को। सो एनसीईआरटीज रीड करते टाइम यू हैव टू रीड द एनसीईआरटीज फ्रॉम प्रीलिम प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। मेंस के एंगल से अगर आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो प्रीलिम के लिए कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज मेंस में आप लोगों की प्रीलिम कवर हो ही जाती है बाय डिफॉल्ट। बस थोड़ा कुछ फैक्ट्स वगैरह ज्यादा इन द सेंस पढ़ने पड़ते हैं प्रीलिम के, नथिंग एल्स। जो कीवर्ड्स एनसीईआरटी में दिए हुए थे, सेम कीवर्ड्स के ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं। 2014 का क्वेश्चन था लास्ट टाइम में, मैंने कहा आर्ट एंड कल्चर का पहला ही क्वेश्चन, जीएस पेपर फर्स्ट, अप टू द व्हाट एक्सटेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। दिस क्वेश्चन वाज टेकन फ्रॉम द 6th standard NCERT.
हिस्ट्री। पेज नंबर चैप्टर नंबर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज, पेज नंबर 24, डायरेक्टली बुक से क्वेश्चन लिया गया था, डायरेक्टली फ्रॉम द बुक्स। और चाहिए क्या आप लोगों को? किसी बाकी बुक्स को अननेसेसरी इंपॉर्टेंस देने से अच्छा आप एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स रिपीट कीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट एक भी रहा ना उसकी बुक्स बहुत है, फ्रॉम 6 to 12 स्टैंडर्ड फॉर इन केस ऑफ ज्योग्राफी सपोज, तो वो तकरीबन आप लोगों की 7 से 8 बुक हो जाती है, बिकॉज जो 11 स्टैंडर्ड की 2 बुक्स और 12 स्टैंडर्ड की 2 बुक्स, वो 4 बुक, और बाकी के आप लोगों की 6 बुक सपोज, 9 से 10 बुक्स हो जाती, तो उनको बुक्स को रिपीटेशन भी होनी चाहिए, बिकॉज एक रीडिंग में या 2 रीडिंग में आप लोग इमीडिएटली कुछ पूरा का पूरा ग्रास्प करने वाले हो नहीं, और होता भी नहीं किसी को, और हो गया तो उसे रिवाइज भी करना पड़ता है। Revision is also the part of study. If you are not revising what you are studying, then what you are doing, we cannot call it as a study. We cannot say that you are doing study without revision. और रिवीजन करने के लिए भी अच्छी बुक्स है, इजी है, और क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट रीजन ये भी आएगा सपोज कि एनसीईआरटी क्यों, जैसे हमने फर्स्ट रीजन देखा था, सिंपल टू किक स्टार्ट द प्रिपरेशन। किसी चीज को शुरू करना, इफ यू आर विलिंग टू स्टार्ट एनीथिंग, बेटर इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द इजी थिंग। आप रेफरेंस बुक पढ़ते हो, लैंग्वेज रेफरेंस लेवल के रहती है, रेफरेंस बुक आर जनरली मेड ऑन द हायर नोट, लाइक डिग्री लेवल, जो डिग्री लेवल भी यूज की जाती है उस रेफरेंस बुक पे। उस रेफरेंस बुक में लैंग्वेज इजी नहीं होती, आप लोगों की सब्जेक्टिव लैंग्वेज अगर आप लोगों को चाहिए, फंडामेंटल वर्ड्स, बेसिक वर्ड्स, so those words or those keywords or that information you will get from the NCERT in the very easy and lucid language, very easy। अभी आप लोग भी सोचिए ना, 6 स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी आप लोग कभी भी पढ़ सकते हैं, राइट नाउ यू आर डूइंग योर ग्रेजुएशन, इजीली यू कैन गो थ्रू द 6 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी। और आप अगर ग्रेजुएशन में रह के भी 6 स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी इंग्लिश में नहीं पढ़ पा रहे हो, तो फिर दिक्कत है कुछ, तो थोड़ी बहुत तो अंग्रेजी आनी ही चाहिए सपोज, थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा नहीं। लैंग्वेज एक अच्छी है, काफी इजी लैंग्वेज होती है। एनसीईआरटी भी 2 रहती है, एक न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी। सपोज व्हाट ओल्ड एनसीईआरटी यू जस्ट हाउ टू यूज इन केस ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट, फॉर रिमेनिंग ऑल द सब्जेक्ट्स लाइक जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस, you have to go through the new NCERTs. For history also there is no compulsion for old NCERTs, but you go through the old NCERTs, then definitely it will help you in the mains writing, answer writing. Because old NCERT of 12th standard it is itself written by the Bipin Chandra. एनसीईआरटी के ऊपर टेस्ट सीरीज देने की डायरेक्ट प्रीलिम प्लस मेंस दोनों भी क्लियर अगर बात कही जाए, आप लोग एनसीईआरटी को रीड तो करते हो, बहुत कम बच्चे ऐसे रहते जो इसको राइट भी करते। बहुत लोग कहते हैं कि नोट्स वगैरह निकाल लो, नोट्स निकालने से अच्छा है एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल, तो टेस्ट सीरीज को आप लोगों ने इनरोल कर लेना या शुरू कर देना ऐसा, तो उसके ऊपर आप लोगों को चैप्टर वाइज दिया जाएगा, ये चैप्टर पढ़ के आना, वो आना, उसी के ऊपर मेंस के क्वेश्चन रहे, कुछ भी करना नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं। आंसर राइटिंग होने के बाद एग्जाम यानी टेस्ट होने के बाद उस टेस्ट का डिस्कशन लेने का कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर में से लिया गया है, लेने के पीछे क्या रीजन था, इसका मॉडल आंसर क्या होना चाहिए, and the model answer we will get from the NCERT itself, from NCERT itself. Excuse me sir. Yes सर वो जो एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज है वो सब मार्केट से बाय करनी है? अरे नहीं, अभी हमारे पास है ना अवेलेबल। यस यस, टेस्ट सीरीज चालू है हम लोगों की, मैं बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग लगा सकते हो, अभी जरूरत नहीं, नेक्स्ट मंथ में अगर करेंगे हम लोग शुरू। ओके सर। यस, बट एनसीईआरटी तो आप लोगों को यानी बेटर है कि आप लोग इसे पढ़ ही लें, और
लिख भी ले, अगर लिख लेते तो बहुत अच्छी बात है, एक कंटेंट आपके पास डेवलप हो जाएगा। द मेन कंसर्न इज यूपीएससी इज अबाउट कंटेंट। कंटेंट लोगों के पास होता ही नहीं, आपके पास भी कंटेंट नहीं है, कंटेंट चाहिए फिर तो रिपीट करो व्हाट यू आर रीडिंग बेसिकली। सो सी दीज आर द रीजंस व्हाई एवरीवन यूज्ड टू फोकस ओवर एनसीईआरटी 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 एनसीईआरटी। बाय द वे आपको तो पता ही होगा बट फिर भी बता दूं, ये यानी एक टेक्स्ट बुक होती है आप लोगों की फ्रॉम 6 to 12 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी। नेक्स्ट ये रहेगा सपोज फ्रॉम वेयर टू स्टडी एंड व्हाट टू स्टडी, प्री रिक्वायरमेंट्स कि मैंने कैसे पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। सपोज पढ़ना क्या है उसमें, प्री रिक्वायरमेंट। सो फर्स्टली बेटर इफ यू मग अप ऑल द सिलेबस directly before starting reading NCERT, better if you start from syllabus itself। आप syllabus से शुरू कीजिए चीजों, because NCERTs are not typically made for UPSC, these are the class books of us or textbook। So go through the syllabus first of all। For instance, if you are starting reading geography NCERT, तो उसमें देखिए geography का मेंस का syllabus क्या क्या है, UPSC मेंस का और प्रीलियम का क्या है। Geography का पढ़िए, हिस्ट्री का पढ़िए, everything which is given in the syllabus you will find it out in the NCERTs। But NCERTs are quite vast। आप लोगों को पूरी NCERT पढ़नी नहीं है, एग्जाम आपकी NCERT के ऊपर नहीं है, ध्यान में रखिए। सो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़िए। So to go properly from exam point of view, better if you have a good grip over your syllabus। Most important, syllabus के ऊपर grip होनी चाहिए आप लोगों की कि मुझे पढ़ना क्या है। तो आप सब पढ़ने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जैसे कि आपने सिलेबस देखा, उसके बाद सेकंड आपको चीज करनी है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। आपने सिलेबस देख लिया हिस्ट्री का, सपोज कि क्या क्या है, कि इसका आपको पता चला कि मुझे एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री मुझे पढ़ना है और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, दैट इज फॉर मेंस ऑन। आपने उसका भी सिलेबस देखा और आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपने देखे, तो इसमें पता चला कि एंशियंट इंडिया के जो क्वेश्चन है जनरली आईबीसी के ऊपर पूछे गए हैं, जैनिज्म के ऊपर क्वेश्चन है, बुद्धिज्म के ऊपर क्वेश्चन है, लाइक रिलीजियस फिलोसॉफी, गुप्ता एज के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए आप लोगों को, लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन है इन आर्ट एंड कल्चर। So from where you are getting this important hot topics from previous year question paper analysis। आप जियोग्राफी के ऊपर क्वेश्चन देखोगे तो जियोग्राफी के आप लोगों को पता चलेगा कि वहां पे आप लोगों को फ्रैगाइल माउंटेन इकोसिस्टम, हिमालयन माउंटेन इकोसिस्टम के ऊपर कंसिस्टेंटली क्वेश्चन है। आप लोगों को वाटर पोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन है। आप लोगों को जो वाटर स्कैरसिटी चल रही है इंडिया में, इंडिया इज वन ऑफ द वाटर स्कैर कंट्री इन द वर्ल्ड, सो कंसिस्टेंटली वी हैव क्वेश्चंस ओवर देयर consistently। Temperature rising, climate change, global warming, wetlands, everything is general over there। But you NCERT में पढ़ना क्या है वो पता होना चाहिए आप लोगों को। तो पता करने के लिए previous year questions are the best source of information। Just get the questions, गूगल को पूछिए आप लोग, गूगल विल सॉर्ट आउट ऑल द क्वेश्चंस। उसको पूछिए कि मुझे हिस्ट्री के मेंस के पेपर दिखाओगे, प्रीवियस ईयर हिस्ट्री मेंस पेपर और मेंस क्वेश्चन, गूगल इमीडिएटली आप लोगों को सब क्वेश्चंस दिखा देगा। क्वेश्चंस को पढ़िए, उसमें से कीवर्ड्स उठा लीजिए कि ये क्वेश्चन आईबीसी के ऊपर है, बुद्धिज्म के ऊपर है, जैनिज्म के ऊपर है, या किसी मुगल आर्किटेक्चर के ऊपर, या गांधी इरा के ऊपर क्वेश्चंस। जस्ट पॉइंट पिक कीजिए और एनसीईआरटी पढ़ते टाइम उस पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए। स्टार सिस्टम रखिए कि कोई क्वेश्चन गांधी इरा, कंसिस्टेंटली गांधी जी के ऊपर क्वेश्चन रहते एवरी ईयर एटलीस्ट, तो 4 स्टार में आएंगे। आप लोगों को पता चला कि देयर इज अनदर पर्सनालिटी लाइक तिलक या एक्सट्रीम स्पेस, वहां पे भी क्वेश्चंस आते हैं 3 स्टार क्वेश्चन हो। तो कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे सिलेबस के जहाँ पे कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बहुत पहले आ चुके, तो 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार ऐसे आप लोग डिवाइड कर सकते इजीली टू गेट टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट टॉपिक और क्वेश्चन सपोज। और बाद में आप लोग एनसीईआरटी शुरू कर सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली स्टार्टिंग रीडिंग एनसीईआरटी, better if you go through the syllabus first of all, and then better if you go through the previous year question paper analysis, because these first 2 stages are also the part of preparation, but 90% people don't do that।
but a serious aspirant always start with the basics. Go through the syllabus, the subjects which you are willing to study. Secondly, analyze the previous year question papers, and then you can start reading NCERT. आप लोगों को मैंने ग्रुप्स के ऊपर ऑलरेडी NCERT डाल दी है, NCERT का लिस्ट. अगर आप लोगों ने अभी तक भी NCERT नहीं परचेज की होगी और नहीं ली होगी तो प्लीज डू इट एंड गेट द NCERTs. आप लोग सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हो सब कुछ. पहले जियोग्राफी की ले ली, फिर हिस्ट्री की ले ली, फिर पॉलिटी की ले ली, और फिर इकोनॉमी की ले ली, और फिर साइंस की लिए. ऐसे भी कर सकते हो इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑल द NCERTs. देखिए दैट विल बी योर चॉइस, बट NCERT must be there. I hope you are getting what I am discussing over here. Are you getting the points? Yes, sir. Yes, sir. Good. Now, how to study NCERT? कि इसे पढ़ना कैसे. देखिए इसको कुछ मेथड्स होती है. जैसे कि आप लोग दो मेथड से, एक तो आप लोग सब्जेक्ट वाइज भी इसे पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप लोग इसे स्टैंडर्ड वाइज भी पढ़ सकते हो. सब्जेक्ट वाइज एंड स्टैंडर्ड वाइज. जैसे कि आप लोगों ने, इफ यू आर रीडिंग द बुक सब्जेक्ट वाइज, subject wise means take any subject of class 6 that you would like to start from. For instance, you have taken from the science. After completing that particular subject, move to the next class, that is 7th class. Consistently आप लोगों को reading चालू रखनी है. 6th class, 7th class, 8, 9, 10, and continue the reading the books of the same subject until you reach the 12th class, 6 to 12, and start the same process with another subject. फर्स्ट रीडिंग में आप लोगों ने नोट्स वगैरह नहीं निकालना है. फर्स्ट रीडिंग शुड बी रॉ रीडिंग. जस्ट गो थ्रू द NCERTs. फर्स्ट रीडिंग में आप लोग नोट्स नहीं निकालेंगे तो बेटर रहेगा. सेकंड रीडिंग में जब भी पढ़ते हैं तब ज्यादा अच्छे से समझ में आता है. लिंकिंग वगैरह भी हम लोग कर सकते हैं. फर्स्ट रीडिंग में लिंकिंग वगैरह इमीडिएटली पॉसिबल नहीं, बिकॉज आपने पूरी बुक पढ़ी नहीं. पूरी बुक पढ़ने के बाद हम लोग इजीली लिंक कर सकते हैं टॉपिक्स को और जो चैप्टर्स उसमें दिए. तो आप लोग एक सब्जेक्ट वाइज पढ़ सकते हो. सपोज फर्स्ट सब्जेक्ट जो रहेगा आप लोगों को जो अच्छा लगेगा वो सब्जेक्ट वाइज, और सेकंड जो मेथड है सपोज दैट इज रीडिंग द बुक क्लास वाइज. क्लास वाइज भी आप लोग बुक्स पढ़ सकते हो. स्टार्टिंग फ्रॉम द 6th क्लास, रीड ऑल द NCERT बुक्स. आपने 6 की सभी NCERT उठा ली और उसमें हिस्ट्री पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, पॉलिटी, एक NCERT खत्म कर दी. आफ्टर कंप्लीटिंग 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 स्टैंडर्ड, ऐसे भी आप लोग खत्म कर सकते. बट जो बेस्ट मेथड है आप लोगों के लिए, सपोज सब्जेक्ट वाइज ही रहेंगे. आप लोग सब्जेक्ट वाइज ही पढ़िए. क्लास वाइज वगैरह जाना कुछ इतना ये नहीं, क्योंकि लिंकिंग भी होनी चाहिए. हिस्ट्री में NCERT लिंक रहती है. आप लोग 6 के ऊपर खत्म होगी, 7th अगर पढ़ लेंगे तो अच्छे से लिंक हो. अदरवाइज 6 की पढ़ेंगे फिर हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, तो सब्जेक्ट स्विच करना इतनी अच्छी चीज नहीं. बेटर इफ यू गो थ्रू द, दैट मींस फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू द बेस्ट वे इफ यू गो थ्रू द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी. आप लोग आपको लगता है कि मैं क्लास वाइज कर सकता हूँ तो आप लोग वो भी कर सकते हो. अभी देखिए इसको दूसरी बात ये है कि मैंने NCERT पढ़ ली है सर, अभी मैं इसको मेमोराइज कैसे करूँ. मुझे कुछ इसमें बहुत सी चीजें जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में होनी चाहिए. So देखिए हाउ टू रिमेम्बर, आप लोगों को देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू मेमोराइज द NCERT. The first way to memorize NCERT is go through the test series as we talk earlier. The very basic. Actually, no one do that. No one goes through the NCERT test series of NCERT suppose. But if you go through the NCERT test series, there will be, means you can prepare thoroughly or concretely suppose. जस्ट इमेजिन कीजिए ना, आप पढ़ाई करके आए और आपने उसी बुक के ऊपर क्वेश्चन लिख दिया, उसे चेक करके आपने उसे डिस्कस भी किया कि इसमें क्या एक्स्ट्रा आना चाहिए. NCERT के अलावा डिस्कशन में हम लोगों को वैल्यू एडिशन भी वही भी मिल जाएगा. NCERT में बहुत बार करंट ईयर रहता नहीं, क्योंकि NCERT थोड़ा सा सपोज अभी तो अपडेटेड है,
बट करंट उसमें दिया ही नहीं है, एक इन शॉर्ट कहा जाए तो हम लोग इसको करंट में भी एक, यानी वी कैन कंपेयर इट सपोज इन अ करंट आल्सो। तो टेस्ट सीरीज सबसे बेटर है आप लोगों के लिए, सबसे बेटर चीज 10 से 11 टेस्ट सीरीज होती है। 11 टेस्ट सीरीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट सभी सब्जेक्ट में से कवर हो जाते हैं। 11 टेस्ट आप लोग दे दीजिए सब्जेक्ट वाइज, दैट्स ऑल। आप लोग खुद ही इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक कंटेंट डेवलप हो जाता है कि अभी बाकी बुक्स के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। I have done with my fundamentals. Now I just have to be in touch with current affairs. What is going on? So from my point of view, test series is the best way. और टेस्ट सीरीज बच्चे लगाते नहीं है, टेस्ट सीरीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यूपीएससी की प्रिपरेशन में आप लोग ध्यान में रखिए, जो 1000 कैंडिडेट होते सिलेक्ट होने वाले, 1000 के 1000 एनसीईआरटी पढ़ते हो, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हैं एवरी कैंडिडेट, क्योंकि खुद का भी परफॉर्मेंस चेक होना चाहिए। डायरेक्टली बैटल खेलने के पहले कुछ एक्सरसाइज होती है बैटल की, वॉर एक्सरसाइज कहते हैं, तो ऐसे एक्सरसाइज होनी चाहिए जो तब जाके एक्चुअल वॉर में परफॉर्मेंस अपग्रेड होके आता है। अगर आप लोग खुद का ही परफॉर्मेंस कभी चेक नहीं करोगे तो अपग्रेडेशन को स्कोप भी काफी कम रहता है और एक परफॉर्मेंस स्टैग्नेंट हो जाता है जैसे थे। तो ये चीज आप लोग एक अच्छे से क्लियर कट ध्यान में रखिए। प्रीलियम को तो छोड़ ही दीजिए आप लोग, अभी यू आर बिगिनर जस्ट, बट मेंस के लिए मैं कह रहा हूँ प्रीलियम का तो टेंशन ही मत लीजिए। सेकंड, आप लोग नोट्स भी निकाल सकते हो। बहुत से लोगों को नोट्स निकालने की आदत है, बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि सर मैं स्कूल लेवल से ही मुझे नोट्स ड्रॉ करने की आदत है और एग्जाम के पहले मैं वो नोट्स ही पढ़ता हूँ मेरे, जो मुझे अच्छे से समझ में आते हैं। तो ये भी आप लोग कर सकते हो। आप लोग अगर कंफर्टेबल हो तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो, मैं तो यही कहूंगा नोट्स निकालिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, अदरवाइज कुछ भी कीजिए। बड़े बड़े नोट्स निकालने से अच्छा आप लोग छोटे छोटे नोट्स भी निकाल सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत जगह दी रहती है वहाँ पे लिखने के लिए, साइड में पेज के ऊपर lots of space is given over there on the pages of NCERT syllabus, so you can draw your own notes over there। otherwise stick notes आते हैं, स्टिकी नोट जिसे आप लोग कहते हैं, वो भी आप लोग वहाँ पे स्टिक कर सकते हो, उसके ऊपर भी नोट्स निकाल सकते हो। माइक्रो नोट जिसे कहते हैं आप, क्योंकि 6, 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड यानी तकरीबन 9 स्टैंडर्ड तक डायरेक्टली भी बड़ी इंफॉर्मेशन भी मिलती नहीं एनसीईआरटी से, फैक्ट से डायरेक्टली सब कुछ। 11 12 का जो है वो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप लोग डायरेक्टली बड़े कुछ नोट्स ड्रॉ करने से अच्छा छोटे छोटे माइक्रो नोट्स भी निकाल सकते हैं। चॉइस विल बी योर्स। तीसरा, आप लोगों को जरिया ये रहेगा एनसीईआरटी रिवाइज करने का कि आप लोग मेंस के पेपर पे वापस राइट कर सकते हो। 2013 से लेके 2020 तक जो पेपर्स आए आप लोगों के मेंस के, फ्रॉम द लास्ट 7 इयर्स के जो पेपर है, वो पेपर्स भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जीएस पेपर 1 2 3 4 सपोज, और 1 2 3 सपोज, 4 इथिक्स तो है नहीं एनसीईआरटी, उन पेपर्स को सॉल्व कीजिए और जितना हो सके उन पेपर के या उन क्वेश्चन के आंसर एनसीईआरटी से लिखने को ट्राई कीजिए। योर मैक्सिमम कंटेंट फ्रॉम द एनसीईआरटी इन द आंसर सपोज, ये भी आप लोग कर सकते हैं। प्रीलियम के लिए तो आप लोग एमसीक्यू भी सॉल्व करवा दे, आगे टेस्ट सीरीज इसमें आएगी प्रीलियम की। एटलीस्ट आप लोगों ने प्रीलियम के लिए एग्जाम हॉल में इंटर करने से पहले हर सब्जेक्ट के 2 से 3 हजार क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होने चाहिए, हर क्वेश्चन हर सब्जेक्ट इंडिविजुअल। यानी ओवरऑल अगर आप लोग 6 या 7 सब्जेक्ट आप लोगों के पकड़ते हो तो आपने 15 से 20 हजार क्वेश्चन तो भी सॉल्व करने चाहिए बिफोर इंटरिंग द एग्जाम हॉल फॉर द प्रीलिमिनरी टेस्ट। 15 to 20,000 एमसीक्यूज। और आप अगर एनसीईआरटी के ऊपर ही एमसीक्यू सॉल्व करते हो प्रीलियम के लिए तो बहुत बहुत प्रोडक्टिव चीज हो जाएगी, बहुत ज्यादा। और मैंने तो पहले भी कहा था कि डायरेक्टली हर साल 30 से 35 क्वेश्चन यानी 30 to 35% पेपर ऑफ प्रीलिमिनरी टेस्ट इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। प्रीलियम की भी टेस्ट सीरीज है एनसीईआरटी की सपोज, तो आपको तो कुछ जरूरत है नहीं अभी इसकी प्रीलियम की, बट एक बता रहा हूँ ध्यान में रखिए नेक्स्ट टाइम के लिए जब आटे में रहेगा तब। नेक्स्ट वे ये है टू मेमोराइज एनसीईआरटी बाय
डूइंग द एक्सरसाइज गिवन बिलो इन द चैप्टर। जो भी आप लोगों को एक्सरसाइज वहां पे दी हुई है उसका पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। वहां पे रिटर्न में भी आप लोगों को आंसर लिखने के लिए कहे गए, आप लोग वो भी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। इससे भी मेमोर आप लोगों का मींस इजी वे टू रिमेम्बर द एनसीईआरटी। एक्सरसाइज अच्छे रहते हैं उन लोगों के, एक्सरसाइज तो सॉल्व किया ही कीजिए आप। और सबसे लास्ट में आप लोगों का बाय द डिस्कशंस, यू कैन हैव अ डिस्कशंस ओवर द टॉपिक्स ऑफ एनसीईआरटी। फॉर इंस्टेंस जैसे कि मैंने कहा कि गांधारा कला शैली एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो यू कैन हैव अ डिस्कशंस ओवर एनसीईआरटी कि व्हाट आई हैव रेड इन एनसीईआरटी, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द एनसीईआरटी, लाइक गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। गांधारा यानी बुद्धा की मूर्ति बनाई गई थी सबसे पहले इंडिया में, तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, गांधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। इंफॉर्मेशन बहुत ही है इसमें, आप लोगों को सब ले सकते हो कि आर्यंस का कैसे इन्वेजन हुआ है, कैसे कैसे लाइफ डेवलप हुई है, बुद्धिज्म क्या है, जैनिज्म क्या है, मुझे क्या समझा उसमें से, उपनिषद के बारे में उसमें एक इंफॉर्मेशन देके रखी, तो व्हाट इज द फिलोसॉफी ऑफ उपनिषद, बोधिसत्ता क्या है, महायान बुद्धिज्म, हीनयान बुद्धिज्म क्या है। तो यू कैन डिस्कस द थिंग जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं जनरल इन द ऑनलाइन टॉपिक डिस्कशन सब, सो दैट आल्सो यू कैन डू। बट बेटर है लिख के निकालिए डायरेक्ट। एक बार लिखना है ना 4 बार पढ़ने के बराबर होता है। एक ही बार लिखने का 4 बार पढ़ने से अच्छा है। फिर यानी रिवीजन को भी ज्यादा दिमाग ये नहीं करना पड़ता है। और खुद के होता क्या है ना कि आप लोग प्रीलियम का दिमाग से बात नहीं लीजिए, दिमाग में मेंस को देखिए। आप लोगों का एक आर्टिकुलेशन होना आंसर में बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड आंसर इज अ वेल आर्टिकुलेटेड आंसर इन यूपीएससी। introduction, main body and proper unbiased balanced conclusion। कंटेंट में मैप्स, केस स्टडीज, एग्जांपल, फ्लो चार्ट्स, फिगर्स, डायग्राम्स, एवरीथिंग इज गिवन इन द एनसीईआरटी। तो आप लोगों के आंसर को भी शेप आ जाता है प्रॉपर। जैसे हम लोग किसी बुक को पढ़ते हैं तो बुक जो होती है ना वो लिंक में होती है, तो आप लोगों के जो आंसर्स होते हैं मेंस में आपने लिखे हुए वो भी लिंक में चाहिए सब, कि आपने 10-20 आंसर लिखे मेंस में, पर 20 आंसर का टोन एक जैसा ही, यानी प्रॉपरली आपने लिखे, यूनिफॉर्मिटी दिखाई पड़ रही है, वहां होमोजेनाइजेशन कहते हैं कि आपने एक थीम करके पेश कर दिया आंसर्स आंसर्स को सपोज, तो थीम भी डेवलप होनी चाहिए। वो इमीडिएटली तो डेवलप होती नहीं, कंसिस्टेंटली आप उसके ऊपर काम करते हैं तब जाके थीम्स वगैरह डेवलप होती है। समय है भी हम लोगों के पास ढेर सारा, और डेवलप करेंगे भी हम लोग चीजों। एक्सक्यूज मी सर, यस। सर ये जो पिछली स्लाइड थी जिसमें 6 पॉइंट्स दिए थे रिमेम्बर करके, तो सर अब उसमें से अगर एमसीक्यू छोड़ दिया जाए तो सर जो बाकी के 5 पॉइंट है वो सब करने के हैं क्या, मतलब कि उनमें से कुछ करने के हैं? अरे कुछ करो ना, अभी सब कैसे क्या करेंगे आप लोग, आप नोट्स भी निकालोगे मेंस के, इतना नहीं करना है कुछ इसमें से। आप लोग जो अच्छा लगे वो कर सकते हो, सब क्यों करेंगे। टेस्ट ओ, सीरीज के ऊपर फोकस कीजिए आप लोग, दूसरा कुछ मत कीजिए। किस पे? टेस्ट सीरीज के ऊपर, क्योंकि वो एक जरिया रहता है जो आपकी पूरी चीजें लिंक में कवर कर ले। एक फॉर्मूला दिया रहता है, एक सेट रहेगा कि इसमें पहली इसमें इतनी एनसीईआरटी, दूसरी इसमें इतनी, तीसरी इसमें इतनी। एक डिसिप्लिन में आप लोगों का 4 से 5 महीने में पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाती है लिख के। 4 महीने में पढ़ के होती नहीं एनसीईआरटी, आप पढ़ के लिख के खत्म कर दिया आप लोग। आप नोट्स वगैरह भी निकाल सकते हो, दैट विल बी योर पर्सनल चॉइस, इतना सब करना नहीं आप लोगों को। ओके, और सर जैसे नोट सेकंड या थर्ड रीडिंग में निकालने की माइक्रो वगैरह, तो सर ये जो 5th पॉइंट है बाय डूइंग एक्सरसाइज करके, तो सर ये 6 स्टैंडर्ड से 6 स्टैंडर्ड के भी करने की क्या मतलब? हाँ ना, अभी सबके ही करेंगे ना हम लोग। और और सर वो फर्स्ट रीडिंग से ही करने की क्या एक्सरसाइज? ओ फर्स्ट रीडिंग से करनी, फिर कब करोगे तो। और वो ओके, एक्सरसाइज में है तो भी क्या, हाँ। एक्सरसाइज बहुत छोटी, वो फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर, नहीं विच सर, आउट द। जैसे बड़ी मतलब 10th 11th वो सर उसके उसके क्वेश्चन आंसर मतलब है सर थोड़े लाइक टफ टाइप। हाँ तो हाँ नहीं मतलब
तो वही किसी स्टैंडर्ड से ही शुरू करने का, किसी भी हायर क्लासेस के लेने के 8 से ऐसा। Everything you have to start from 6th standard. अच्छा, और सर पहले ऐसा किया तो पहले 5वां पॉइंट किया, मतलब एक्सरसाइज सॉल्व की, सपोज हर सब्जेक्ट की उसकी रीडिंग करके बाद, और फिर उसके बाद मेंस पेपर के आंसर राइट डाउन किए। सर ये बराबर स्टेप है क्या मतलब? यस, सही है, आप वो भी कर सकते हो। आप एनसीईआरटी पढ़िए पहले, रीडिंग यस सर। होने की फिर हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है? यस यस सर। यस तो पढ़ते पढ़ते ही एक्सरसाइज सॉल्व करने की। यस यस। यस सर। अभी देखिए इसमें कुछ स्ट्रेटेजीज दी गई है, कुछ बेसिक थिंग्स अबाउट रीडिंग एनसीईआरटी। रीड द एनसीईआरटीज एंटायर एनसीईआरटी फर्स्ट, एटलीस्ट ट्वाइस। दो बार तो भी रीडिंग एनसीईआरटी की होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को फर्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत समझेंगे, सेकंड रीडिंग में प्रॉपर लिंकिंग शुरू होती है। बिफोर द टास्क इज कंप्लीट, डू नॉट ट्राई टू मेमोराइज एनीथिंग। आप अगर कहते कि मैंने दिमाग में मगअप करने के लिए एनसीईआरटी पढ़नी, तो वैसा बिल्कुल मत कीजिए। एकदम इजी और रॉ एनसीईआरटी पढ़िए, जैसे आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। There is no need to memorize anything in the NCERT. No dates, no wars, no forces, no casualties, no king and no dynasty. There is no need to memorize anything. Just focus on the theme, what they are saying. आप अगर कहेंगे कि मैंने इसमें से नोट्स भी निकालने और सभी मैंने ध्यान में रख लेना, ये पॉसिबल है ही नहीं। जस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी, हैव अ गुड फ्रेंडशिप विद देम। इजी रखिए चीजों को, नेचुरली जाइए, एकदम नेचुरल, जैसे न्यूज़पेपर को नेचुरली जाते। फिर भी न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद चीजें ध्यान में रही तो जाती है। सेकंड रीडिंग में ढंग से करेंगे हम। If you are not able to understand a particular topic, just go through the force and avoid the tendency to go through the previous paragraph again. जैसे आपने कहा कि 9, 10 स्टैंडर्ड, 11 स्टैंडर्ड और 12 स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी और 10 की सपोज, दोज आर क्वाइट हार्ड टू अंडरस्टैंड। ऐसे होता है, जैसे लेवल बढ़ते जाएंगे वैसे टफनेस भी बढ़ते जाएगा। तो बहुत बार ऐसे भी होता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में आता नहीं और हम लोग वापस उसी टॉपिक को पढ़ते हैं। सो डोंट डू दैट। नहीं समझ में आया है, आगे बढ़ते जाइए, वहीं पे मत रुक के बैठिए। डोंट बॉदर योर ओन ब्रेन सपोज, and don't try to remember the 100% stuff. No one can do that to you. सबका सब मेरे ध्यान में रहना चाहिए, सबका सब आने वाला नहीं, थोड़ा बहुत ही आने वाला है। So reading the NCERT first, no expertise reading, raw reading. You have to read the NCERT at least twice and do not try to memorize anything. हिस्ट्री में लास्ट टाइम किसी का तो भी कहना था कि सर डेट्स वगैरह बहुत ज्यादा दिए, तो नो नीड ऑफ एनी डेट ओवर देयर। इतना भी फैक्ट यूपीएससी पूछती नहीं है, और आपका पेपर फैक्चुअल भी नहीं होना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन होती है। फैक्ट्स कम ही डालते हैं हम लोग एक्चुअली, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ क्वेश्चन वी यूज्ड टू पुट द फैक्ट्स ओवर देयर। सो डायरेक्टली आप लोगों को एकदम भी कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो दिस वाज द सपोज फर्स्ट स्ट्रेटेजी। एंड सेकंडली व्हाट यू कैन डू, मोस्ट ऑफ द एनसीईआरटीज आर इजी टू मॉडरेट। इफ यू हैव रीड द मटेरियल ट्वाइस, you will get your questions right. Few NCERTs are really difficult. For instance, 11th standard NCERT of geography, fundamentals of physical geography, fundamentals of Indian geography. After that, human geography is there in 12th standard. Another book is over there in the 12th standard. So those are really hard to understand. Suppose those are quite difficult to understand, but don't change your strategy on that basis. Suppose कि मुझे नहीं समझ में आ रही इसलिए मैं बाद में पढ़ूंगा, एक बार गो थ्रू कर लीजिए उसको। वो अभी नहीं समझ में आई तो बाद में भी नहीं आएंगी। जस्ट नॉर्मलाइज करते जाइए चीजों बाय मल्टीपल रीडिंग्स। आफ्टर रीडिंग द एनसीईआरटी में को लॉजिकल कनेक्शन, सपोज डेवलप योर ओन पर्सनल इंटरनेट्स एंड ट्राई टू कोरिलेटेड टॉपिक्स। आपने सिलेबस पढ़ा है पहले ही, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ लिए हैं, एनालिसिस हमने किया, नाउ यू आर रीडिंग द एनसीईआरटी। आप लोगों का सिलेबस प्लस पेपर प्लस एनसीईआरटी ये सब कोरिलेट होना चाहिए।
everything should be correlated. और यूपीएससी में कोरिलेशन ही इंपॉर्टेंट है, एवरी पॉइंट मस्ट बी इंटररिलेटेड और इंटरकनेक्टेड. जैसे कि हमने कहा कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज भी काफी ज्यादा मॉडरेट है, तो आप लोग काफी सिंपल वर्ड्स भी वहां से ले सकते हो. सो सिंपल वर्ड्स विल form the simple sentences. एक वोकैबुलरी डेवलप होगी, प्रॉपरली आप लोगों का प्रेजेंटेशन प्रॉपर हो जाएगा सब. बट एनसीईआरटी रीड करते टाइम ये चीजें तो आप लोग ध्यान नहीं रखिए कि इनिशियल फेज में आपको एनसीईआरटी इजी लगेगी, बट आप जैसे 10, 11, 12 तक पहुंचते हो, हार्ड टू डाइजेस्ट and difficult to understand. But it happens with everyone because those few NCERTs are really not difficult as such. They are quite technical. वो समझने में थोड़ा समय लगता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके समझती नहीं, ऐसा बात नहीं. So no need to worry actually. So these are the things suppose about NCERT. सेकंडली सी, आप लोगों को एनसीईआरटी का लिस्ट दिखा देता हूँ, वो एक बार देख लीजिए. हिस्ट्री एनसीईआरटी सपोज आप लोगों को 6 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी, आवर पास्ट 1, स्टैंडर्ड 7, 8, 9 की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आईआर के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल सॉरी आईआर नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू. 10th स्टैंडर्ड की इंपॉर्टेंट है, 11th स्टैंडर्ड की वापस आप लोगों की वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, 12th स्टैंडर्ड की इंपॉर्टेंट है. ओवरऑल 6 to 12th स्टैंडर्ड आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. 9th और 11th की सपोज डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं, बट लगेंगी. और ज्योग्राफी की तो सभी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम 6 to 12th स्टैंडर्ड. 11th की दो एनसीईआरटी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल्स एंड सेकंड इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, एंड 12th स्टैंडर्ड फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी. These NCERT are really important, very much important. These 4 NCERTs, 4-star NCERT है कि हर साल बहुत क्वेश्चन रहते हैं 4 NCERT में से. और चारों NCERT ने कुछ नहीं, 6 to 12th में, 10th में जो दिया है उसी को इन लोगों ने वापस थोड़ा सा मैग्नीफाई करके 11, 12 में पुट किया, नथिंग एल्स. सिलेबस इज सेम. मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स आर रिपीटेटिव ओवर देयर. इफ यू सॉइल चैप्टर है, नेचुरल वेजिटेशन एक चैप्टर है, आप लोगों को पोल्यूशन के ऊपर कुछ चैप्टर्स है, दोस आर कंसिस्टेंटली रिपीटेड इन अल्टरनेटिव एनसीईआरटी. 6, 8, 9 चलती रहता है, हर चैप्टर बुक में आते कुछ चैप्टर्स. ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी. इकोनॉमिक्स के लिए आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पढ़नी है. 10th स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्या बोल रहे हैं, टेंथ स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड 11th स्टैंडर्ड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ऑल 3 एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट. और पॉलिटी 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया 1, 2, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ. 11th और 12th की तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, फिर दो इट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी. इसमें सोशियोलॉजी की भी एनसीईआरटी आएंगी 11th और 12th की, बट वो ठीक है, वो बाद में भी हम लोग ये कर सकते हैं, बिकॉज सोशियोलॉजी इज काइंड ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ दिस. वो कोई डायरेक्टली सब्जेक्ट नहीं है, 30-40 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो आप नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा. एनसीईआरटी लिया तो बहुत अच्छी बात है. और साइंस के आप लोगों को देखिए, सभी एनसीईआरटी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को लिस्ट में चैप्टर वाइज दिया हुआ है, बट साइंस की भी लगेंगे आप लोगों को. सपोज 12th स्टैंडर्ड की आप लोगों की डायरेक्टली एनसीईआरटी नहीं भी लिया चलेगा, आप लोगों को जो यूनिट है वो आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो ncert.org के ऊपर से, org के ऊपर से. और एनसीईआरटी कभी बल्कि भी, so instead of directly purchasing NCERT, you can download those chapters which are important from exam point of view. You can download it from the website suppose of NCERT. But above 3 NCERTs are very much important. 4 NCERTs: history, geography, polity, and economics.
very very important. Now you take a time of 2 minutes, and if you have any doubt, question, query, please get it clear. एक्सक्यूज मी सर, Yes, बोलिए. अच्छा 11th स्टैंडर्ड की 3 ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है ना, तो हमें वो तीसरी वाली प्रैक्टिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है? नहीं, practicals in geography is not important. That Okay, sir. NCERT, yes, that वो आप लोग परचेस ही मत कीजिए. वो प्रैक्टिकल वाली, वो उसमें ज्योग्राफी कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह दिए हुए, that is not important. Excuse me, sir. हाँ. Sir, am I audible? Yes. तो sir, like you to we are having our like we will be having our attempt in suppose 2 or 3 or 4 years suppose. तो sir ये जो this is our first year of studying. तो sir ये